Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia and in this video I'm going to discuss most important American literature, or you guys can say non-British literature, which is very important for upcoming UGC NET and other literature exams of English, because we have seen many PYQs from American literature. And guys, trust me, if you complete this video, definitely you guys understand easily about American literature as well as the writers. Those are repeated in exam again and again, and you really happy about it that you guys will answer if you complete this video of mine before your examination. Okay, so let's start question series. Guys, before start question series, I'm going to discuss brief about American literature, in which I explain you the period, early period of American literature, romantic period as well as the modern period. मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करूंगी? बिकॉज दिस पीरियड को अगर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ, यू गाइस कम टू नो अबाउट द मेजर राइटर्स ऑफ द पर्टिकुलर एज, तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे कि कौन सा राइटर कब लिटरेचर में अपने वर्क को लिख रहा था, एज वेल एज मोस्ट हेल्प यू, मोस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा टू आइडेंटिफाई और टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर. ओके, सो if I talk about the early American literature, so guys, जो early American literature था, essentially colonial literature consider किया जाता था, और उस literature के बारे में हमें पैम्फलेट की फॉर्म में पता लगता था. राइट, पैम्फलेट लिखा जाता था और जो राइटिंग्स लिखी जाती थी, द बेनिफिट्स ऑफ द कॉलोनीज, वही राइटिंग्स लिखी जाती थी. एंड जॉन स्मिथ is considered to be the first American writer, okay, in American literature. Right, now I'm going to discuss the year 1700. What's the importance of the year 1700 in American literature? If I talk about the 1700, is seen as a revolutionary period of American literature. Right, American literature के revolutionary period को 1700 is consider किया जाता है. 1700 consider revolutionary period of American literature क्योंकि इस period में we saw, guys, politically motivated writing, support of the British rule, and in support of American patriotism and independence, right, and relating to the constitutions. So ये सब writings आपकी देखी जाती थी 1700 में. And if I talk about the important work of this period were Benjamin Franklin's Poor Richard's Almans and the autobiography of Benjamin Franklin. Most important work we studied in 1700. Okay, so guys, the period from 1820s to 1860s is known as the romantic period of American literature, जिसे हम the American Renaissance भी बोलते हैं. And we have Nadine Hawthorne, हरमन मेलविल, राल्फ वॉल्डो एमरसन यानी कि आर डब्ल्यू एमरसन, डेविड थारो एंड वॉल्ट विचमैन जैसे राइटर्स पर वर प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड. ओके, एंड दीज ऑथर एक्सपेरिमेंटेड इन स्टाइल एंड डेवलप्ड थीम इम्पॉर्टेंट टू अमेरिकन आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन. इन लोगों ने उस थीम पर बात की थी. इन सभी राइटर्स की जो राइटिंग्स थी, वो थीम, इन्होंने ऐसे थीम लिए थे जो अमेरिकन आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करे, बताए वर्ल्ड को कि व्हाट एग्जैक्टली इन अमेरिका. राइट, सो if I talk about the post civil war period, so writing by मार्क ट्वेन की राइटिंग हमें पोस्ट सिविल वॉर में देखने को मिलती है. साथ ही साथ हेनरी जेम्स, राइट, अमेरिकन राइटर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. दिस पीरियड वॉज कंसिडर रियलिस्टिक इन इट्स एम्फेसिस. इस पीरियड में जो भी राइटिंग लिखी जा रही थी पोस्ट सिविल वॉर में, वो रियलिस्टिक थी, क्योंकि जो भी उस समय की ट्रूथफुल सिचुएशन थी उसको डिपिक्ट किया जा रहा था. ओके, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग्स. यू नो गाइज, इफ़ आई टॉक अबाउट दी मार्क ट्वेन, तो इनके बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क थे जो हमें देखने को मिलते हैं इस पीरियड में. द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेलर, जो कि 1876 में इनका वर्क आ रहा है. देन दे ही रॉट अबाउट द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, 1884 में लिखा जा रहा है. एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फिक्शनल वर्क्स इस पीरियड में आपको देखे जाते हैं. एज वेल एज कहीं ना कहीं गाइज आपको अमेरिकन लिटरेचर की 20th सेंचुरी में नेचुरलिज्म देखने को मिलेगा. राइट, इन 20th सेंचुरी फिक्शनल वर्क में आपको नेचुरलिज्म देखने को मिलेगा अमेरिकन लिटरेचर में. नाउ आई एम गोना डिस्कस ब्रीफ अबाउट मॉडर्न पीरियड ऑफ अमेरिका. ओके,
So guys, if I talking about the modern period of American literature reflected the changing social, ठीक है, social, political, cultural climate आप कह सकते हैं of the American nation, ये सब changes हो रहे थे. And the most important writers we study in modern period, Robert Frost, right, Wallace Stevenson, John. ओके, नेक्स्ट वी हैव एफ स्कॉट फिट्जरग्लैड, जिनके बहुत से वर्क आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव विलियम फॉकनर, most important writer of the modern age in American literature, and Ernest Hemingway. All belong to this period. And now I'm going to talking about contemporary period of American literature. तो जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है अमेरिकन लिटरेचर का इंक्लूड करता है वर्क्स रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. जो भी वर्क आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लिखा जा रहा था, इट इज़ कंसिडर्ड कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. रिमेंबर गाइज. और इसमें हम पढ़ते हैं रॉल्फ एलिसन, एलिस वॉकर एंड एडवर्ड एल्बी और अर्थर मिलर जैसे राइटर्स को, एज वेल एज हम स्टडी करते हैं टेनिसन विलियम, द स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर. मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो वर्क है, क्लासिकल वर्क है अमेरिकन लिटरेचर में, इन सभी राइटर्स को हम पढ़ते हैं आपका कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. सो होप गाइज आपको मेरे लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन से इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कौन से राइटर किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज इन क्रोनोलॉजी क्वेश्चन मे बी आस्क. सो इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट, सो डेफिनेटली यू गाइज कैन आंसर क्विकली. ओके, let's start our question series, which is most important for exam point of view. Okay, first question we have, Invisible Man by Ralph Ellison is widely recognized as a masterpiece. It is also one of the finest example of, किसका example है? So this is the example of coming of age novel. Okay, so recognize as a कौन सा? Invisible Man. If I talk about the Invisible Man, this also the example of coming of age novel. Okay, इनविजिबल गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है राल्फ एलिसन की, एंड दिस इज द फर्स्ट नॉवल इनकी लाइफ टाइम में जो पब्लिश हुई थी, एंड इन द ईयर 1952, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इनविजिबल मैन, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग ऑफ एज नॉवल. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ओपनिंग स्टैंजाज ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, which man begins his spiritual awakening at the age of? So the answer is 37. Okay, let's discuss brief about Whitman, Walt Whitman. Guys, if I talk about Walt Whitman, तो इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1819, right? 1819 to 1892, this is the time period of Walt Whitman, and he was the first powerful poet who was called the Pride of America. इनको Pride of America भी बोला जाता है, Pride of America, right? Remember guys, Pride of America. Okay, Walt Whitman and first powerful poet consider he is. इनकी जो कुछ कलेक्शंस है पोम्स के, लाइक लीव्स ऑफ ग्रास, चिल्ड्रन ऑफ आदम, स्पॉन्टेनियस मी, अ वुमन वेट्स फॉर मी, काइंड्स ऑफ, एंड अ पैसेज ऑफ इंडिया, पैसेज टू इंडिया, जो कि आपकी एक नॉवल भी स्टडी हम करते हैं 1924 में आई थी, और इन्होंने ये पोएम लिखी है, अ पैसेज टू इंडिया. Don't forget about it. Okay, a passage to India, this is the poem written by Walt Whitman, and most important elegy he written on the death of Abraham Lincoln, the president of America. Oh captain, my captain. This came in the year, I think, 1956. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, अभी 2024 में इस क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछा था, क्योंकि उससे पहले भी मैनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम्स, बट 24 में दिस क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा गया था किसकी डेथ पर लिखा गया है, राइट. तो ऑफकोर्स द अब्राहम लिंकन, द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, ओ कैप्टन माई कैप्टन. इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब मौन दिखा रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ प्रेजिडेंट. ओके, ओ कैप्टन माई कैप्टन, और right, and this is enough I think about Walt Whitman. Let's go next question, because हमारी question series रह जाएगी अगर मैं सारा explanation पे ही रहूँगी. Let's read. Okay, you are your words, your listeners see written on your face, the poems they hear like letters carved in a tree's bark, the sight and sounds of solitude's endurer. These lines from a poem dash on the death of dash. तो गाइज स्टीफन स्पेंसर की पोएम है, एंड W.H. ऑर्डन की डेथ पर लिखी गई है. ओके, इट्स इनफ. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वी हैव Arthur Miller. Arthur Miller's death of a salesman relies for its tragic seriousness
on the fate of A. Willie Loman. Willie Loman, who is the character in the Death of a Salesman, and क्लासिकल वर्क है अर्दर मिलर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ़ यू स्टडी द समरी ऑफ दिस वर्क, सो गुड टू गो फॉर यू, राइट? So guys, the death of the salesman, this is the stage play written by Arthur Miller, okay, in the year 1949. And remember, this also won the Pulitzer Prize of Drama, okay. 1949, it won the Pulitzer Prize also. The death of a salesman, okay, remember this fact, I'm just telling you, okay. Let's move on. Next question we have, and miles to go before I sleep इज़ अ लाइन फ्रॉम अ पोएम बाय. देखो ये पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टू हुम वी स्टडी इन अमेरिकन लिटरेचर, और इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1874 राइट टू 1963 है. अमेरिकन पोएट है और इनको इनकी रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए जाना जाता है. रूरल लाइफ के बारे में ये डिस्क्लोज करते हैं अपनी यू गाइस कैन अपनी पोम्स में, राइट. एंड कॉलिक्वल स्पीच, द स्पीच विच इज़ बेटर फॉर कॉमन मैन, ठीक है. एक ईजी लैंग्वेज विच ईजिली अंडरस्टैंड बाय अदर. दिस इज़ द मैथड ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन राइटर हैं. एंड ही रॉट द पोएम जिसकी लाइन यहाँ पे दी गई है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ओके. Let's move on next. In Moby Dick, Captain Ahab falls for his dash pride. अपने प्राइड की वजह से वो फॉल्स हुआ था. सो गाइज, मॉबी डिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एपिक नॉवल है विच इज़ रिटन बाय अमेरिकन राइटर हरमन मेलविल के द्वारा लिखी गई है. इन द ईयर 1851 में ये पब्लिश हो रही है. 1851 मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक नॉवल है जिसके कैरेक्टर से और स्टोरी लाइन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है. तो दिस इज़ द नॉवल जिसके अंदर द सेलर दिखाया गया है, इशामेल, नरेटिव ऑफ द उसने बताया है कि किस तरीके से उसने जो शिप थी मॉबी डिक नाम की, किस तरीके से जो एक शार्क थी बहुत ही बड़ी थी, और किस तरीके से उसको वो उसकी टांग खा जाती है एक बारी. तो काइंड्स ऑफ स्टोरी यू फाइंड इन दिस नॉवल. तो अगर आप इसको स्टोरी को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट कि उसके अंदर क्या बताए. बट द डेफिनेटली जो अहाब था वो उसका जो फॉल्स होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, उसकी प्राइड की वजह से ही उसका फॉल होता है. इसके अंदर इसके कैरेक्टर्स देख के जाइएगा गाइज मॉबी डिक के. रिमेंबर 1851 द पब्लिकेशन डेट ऑफ, एंड रिटन बाय हरमल मेलविल, ओके. हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल आर्म इज डिवाइडेड इनटू ऑप्शन नंबर डी 5 बुक्स में डिवाइड है. गाइज दिस इज द नॉवल विच इज़ अबाउट वर्ल्ड वार फर्स्ट, राइट, और पब्लिश हो रही है 1929 में, राइट. हेमिंगवे ने इसको लिखा था. अ फेयरवेल आर्म्स जो आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में है और 5 बुक्स में डिवाइडेड है, राइट. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज अ लिस्ट ऑफ अमेरिकन वर्ड्स एंड वर्ड्स मेकर्स, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे वर्ड्स एंड वर्ड्स मेकर हैं, राइट. H.L. मैनकिन, फिलिप वाइल, जैक कॉनवे और सिनक्लेयर ल्यूज, राइट. बैबिट, येस मैन और आपका बाइबल बेल्ट एंड मॉनिज्म. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं एंड वर्ड मेकर हैं, किसने इस वर्ड को बनाया है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेजल टोन इन स्पीच इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ. देखो नेजल टोन हम कौन सी स्पीच में यूज़ करते हैं, कौन सा फीचर होता है, कौन सी इंग्लिश का फीचर होता है. सो दिस इज़ द फीचर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश. अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर नेजल टोन से इंग्लिश बोली जाती है, ओके. सो एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माइन गाइज, जहाँ पे मैंने वर्ड और वर्ड मेकर बताया था, आई एम सॉरी आई डोंट हैव राइट नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट. सो दैट इज़ द रीज़न. अगर आप उसका आंसर खुद से कर पाएँ तो कर लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, ओके. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Willie in Arthur Miller's play Death of a Salesman compares Biff and Happy to the mythic characters figure. कौन से जो एक mythic character है जहाँ पे वो उनको compare करता है बिफ को और हैप्पी को. So here the answer Adonis and Hercules. एडोनिस एंड हेरक्युलेस को कंपेयर किया जाता है बिफ और हैप्पी से, राइट. इन द प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिटन बाय आर्थर मिलर इन द ईयर 1949, ओके.
Which of the American novelists is associated with the series of 5 books about Natty Bumbo, an old hunter, also called Leather Stocking? So here the answer James Fenimore Cooper, J.F. Cooper, right? This is the answer associated to 5 books about Natty Bumbo and ओल्ड हंटर ऑल्सो कॉल्ड लेथर स्टॉकिंग के लिए जाना जाता है कूपर को. ओके, अमेरिकन राइटर्स है. एडवर्ड ब्रैथवेट्स पोम कैलिप्सो assumes that you are familiar with. So the answer to this question, option number B, the West Indian music in syncopated African rhythm. Okay, so the answer to this question. Okay, let's discuss next question. Emily Dickinson's use of open form or free verse is comparable to her contemporary American poet named Walt Whitman. Walt Whitman, contemporary of Emily Dickinson. Okay, let's move on. Next question. The epitaph on her tombstone that Emily Dickinson composed herself reads called back. Okay, let's move next. The word calmus, a kind of water, referenced in the title Calamus Poems, is a symbol for which man of male companions. Okay, Allen Ginsberg's Howl, a key work of the beat movement. See guys, beat movement, if I talk about तो beat movement में अगर आपसे important figure पूछा जाएगा, so the answer you have Allen Ginsberg. I have already told you in my previous video in which I mentioned all the literary movements in chronology as well as the members of particular movement associated with, राइट. सो आपको वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. 2 or 3 क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल फाइंड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइंड. गाइड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई वीडियोज़? My video's purpose is that I want secure your 2 or 4 marks from single video of mine. आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मेरे क्वेश्चंस जो भी मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए हैं आपको 2 और 4 एग्ज़ाम्स में आपके जो मार्क्स हैं वो स्कोर कराने वाले हैं. स्कोरिंग मार्क्स वीडियोज़ हैं मेरी. सो प्लीज़ सभी वीडियोज़ को देखिएगा एंड ऑल वीडियोज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. इन दिस वर्क एलन गिन्सबर्ग Howl, a key work of a beat movement, was dedicated to, किसको dedicated था? This is the dedicated to Carl Solomon. Okay, let's move on. Next question. Next question we have, identify the right chronological sequence, right? So the answer to this question, option number C, Sister Carrie, which came in the year 1900. Then we have The Great Gatsby, 1925. Beloved, Toni Morrison, 1987. And next, The American Pastoral, which came in the year 1997. All the important text, described in this question. So please make a note every year, which I mentioned here. 1900, आपका Sister Carrie. The Great Gatsby, 1925. Beloved, 1987. And next we have The American Pastoral, which came in the year 1997. Okay, let's move on. Next question of today's video. Which of the following images does not figure in Audubon's Muses des Beaux Arts? So the answer, Ranches of Isolation and the Busy Griefs. Okay, let's move on. Next question. See guys, who among the following is not a beat writer? Beat writer नहीं है, right? We have Jack Kerouac, हमने पढ़ा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे मेंबर्स आपको डिस्कस कराए हैं, तो आप देख लीजिएगा. सी हमारे पास रॉबर्ट लॉवेल इज नॉट एसोसिएटेड विद बीट जनरेशन. ओके, सो द आंसर जैक, एलन एंड विलियम, राइट. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिगर अ पोम मेक्स इज एन essay by. The answer, Robert Frost. Okay, so this is the essay written by Robert Frost in the year 1939, right? The year of publication 1939. This is the essay written by Robert Frost in which he talks the year actually 1939. Guys, in this essay जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इन्होंने इसमें गुड पोएम्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है उसकी मेरिट्स के बारे में हमारे को मेंशन किया है. द फिगर अ पोएम मैक्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
What common link do you find among the Disquieting Muses by Sylvia Plath, The Starry Night by Annie Sexton, Morning Picture by Andrina Rich, and Muses Dex Bjork's Art by W.H. Auden? So guys, these all are all inspired by paintings. सभी की सभी painting से inspired हैं, right? This is the common in these four lines. Okay. This is the next question. The lost generation refers to the generation that came to maturity in the 1920s में आपका lost generation आ रहा है. I have discussed in previous video of mine in which I mentioned all the literary movement as well as the writer's chronology order. Okay, let's move on. Next question. The new humanism school of philosophy and literary criticism was popular in America during 1910 to 1930. Okay, remember the year. Next we have the Calson of Creation is Love. The line occur in Walt Whitman की कौन सी पोएम में ये लाइन आई है? द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट? सो देयर आर 4 poems written by Walt Whitman. As I told you, Passage to India, Oh Captain, My Captain, 1956, on the death of Abraham Lincoln. Okay, and the answer to this question is Songs of Myself. Okay, तो 4 poems आपको remember हो गई होंगी, written by Walt Whitman की American writer है जो. Okay, let's move on. Next question. Here guys, you will have to match the character with the novel. Caddy, Lanny, Jack Barnes and Tommy, right? Let's see the text. Here I matched for you guys the Sound and the Fury character Caddy आपको मिल जाएगा इसमें, of Mice and Man, Lanny, the sun also rises, Jack, and sees the day, Tommy, right? These are the character and these are the text in which they are. Okay, let's move on. Next question. Next question. Who among the following writers belonged to the American Beat movement? Guys, you see so many question repeated. Beat movement, American Beat movement. मैंने आपको बताया था ना, repeated questions I'm gonna discuss and in most important. So here the answer we have Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड विद अमेरिकन बीट मूवमेंट. मैंने आपको डिस्क्राइब किया और मेरी प्रीवियस वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा जिसमें मैंने लिटरेरी मूवमेंट बताया. लास्ट पॉइंट रिवीजन है वो. अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख के जाएंगे तो आपके माइंड में अच्छे से वो सेट हो जाएंगे एंड इफ़ द क्वेश्चन विल कम डेफिनेटली यू विल आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is the question. The lost generation is a name applied to the disillusioned intellectuals and aesthetes of the years following the First World War. Okay, here is the definition you guys can say the lost generation believe in. Okay, so who called them the lost generation? Of course, Gertrude Stein. मैंने आपको question में previously भी बताया था कि Gertrude Stein associated with the lost generation. Okay. Let's move on. Next question. This is the next question. Wallace Stevenson, the man with the blue guitar, may be linked to the work of the following artist. किस artist के work से link करता है? So here the answer option number C, Picasso. Okay. Let's move on. Next question. This is important question for upcoming exam point of view. वैसे तो all the questions are important जो मैं अपनी वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ, but this is most. Okay. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक यू गाइज कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ओके, सो आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट कौन सा है. तो आंसर हमारे पास है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट. देखो, ट्रांसडेंटलिज्म वॉज अ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट. दिस इज राइट. एंड ऑप्शन नंबर 4, among the major text of transcendentalist thought आर द एसे ऑफ एमर्सन. एमर्सन क्योंकि लीडिंग फिगर है ट्रांसडेंटलिज्म के, दैट्स द रीज़न कि अमंग द मेजर टेक्स्ट ऑफ ट्रांसडेंटलिस्ट थॉट आर द एसेज ऑफ एमर्सन. एमर्सन के एसेज आपको देखने मिल जाएंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज, इन दिस क्वेश्चन देयर आर लाइन्स. डू आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes.
The above lines are from, of course, the lines from the poems of Walt Whitman. See guys, Walt Whitman most important American writer है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी लाइंस पोएम्स की एंड इनके वर्क्स आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाएंगे. सो प्लीज़ मेक अ लिटिल नोट रिगार्डिंग वॉल्ट विटमैन बिफोर योर एग्जामिनेशन. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. पैट्रिक वाइट की जो नॉवल है वॉज इज नॉवल अबाउट. So this is novel about the landscape. Okay, let's move on the next question. The letter A in the Scarlet Letter stands for. तो यहाँ पे इसका आंसर है अडल्ट्री. ठीक है, अडल्ट्री के लिए ये आया था ए. तो जो भी मतलब उस समय पे जब ये स्कारलेट लेटर लिखा गया था वर्क, उस समय पे जो वहाँ का सिचुएशन था उस इरा का, उस समय पर अफेयर जैसा विदाउट मैरिज आप साथ में नहीं रह सकते थे. तो काइंड्स ऑफ इसको सिन माना जाता था. और जो भी ऐसा करता था, मतलब कि जो इसमें मदर होती है स्कारलेट लेटर में, जो स्कारलेट होती है जो मदर बन जाती हैं बिफोर मैरिज, तो उनको ये ए लेटर का उनके गले में डाल दिया जाता था. ए लेटर उसके ऊपर लिख दिया जाता था, विच मीन्स अडल्ट्री. ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके गाइज, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक आंसर नहीं देना है. मीन्स आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं. मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, सॉरी. तो अडल्ट्री तो है ही है इसके अंदर. एंड नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर सेकंड एबल and option number third also angel. These three words are stands for letter A. Okay, in the work scarlet letter stands for A. Okay, so this is the complete information I have given you. Let's move on next question of today's video. Okay, here is the question. Which post-war British poet was involved in a disastrous marriage with Sylvia Plath? Ted Hughes is the husband of Sylvia Plath, as we know about it. So of course the answer to this question. Let's move on next question. डिसास्टर मैरिज थी क्योंकि आफ्टर मैरिज इन्होंने अपने आप को ओवन में अपने फेस को ओवन में दे दिया था और सुसाइड कर लिया था. बहुत ही मतलब ब्रूटली इन्होंने अपने आप को मारा था सिल्विया प्लाथ ने. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्यूइश अमेरिकन नॉवलिस्ट. देखो ज्यूइश कौन नहीं है इसमें, तो बी हेनरी ग्रीन नहीं है, अदरवाइज जेडी सेलिंगलर, विलियम फॉकनर एंड फिलिप रोथ. तीनों के तीनों ज्यूइश अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं. रिमेंबर द नेशनलिटी ऑफ दीज राइटर, क्योंकि नेशनलिटी से भी क्वेश्चन एग्जाम में नाउअडेज पूछे जा रहे हैं. ओके गाइज, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई टुडेज़ वीडियो. होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम. नॉट विल हेल्प यू, मस्ट हेल्प यू. ओके, रिमेंबर दिस. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी हियर आर लिस्ट 1 and 2. यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं एंड यू गाइज कैन मैच दैम विद देयर ऑथर. ओके, फर्स्ट वी हैव बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ओ कैप्टन माई कैप्टन. of course from the ओ कैप्टन माई कैप्टन से ली गई है. Two roads diverged in a wood. Okay, so much depends upon. देखो, two roads diverged in a wood. This is the poem by Robert Frost. ये आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. राइट. ओ कैप्टन माई कैप्टन, वॉल्ट विटमैन. अभी कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. 1956 पोएम है ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन. वॉल्ट विटमैन. राइट, वॉल्ट विटमैन. राइट. नेक्स्ट टू लाइन्स वी हैव बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एंड सो मच डिपेंड्स अपॉन. लेट्स सी द आंसर टू दिस. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, दिस इज एमिली डिकन्सन. एमिली डिकन्सन की पोम की लाइन है, इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट वी हैव सो मच डिपेंड्स अपॉन. दिस इज फ्रॉम विलियम कार्लोस विलियम, WC विलियम्स. ओके, इनकी लाइन है. प्लीज़ गाइज अच्छे से देख लीजिएगा, लाइन्स को मैच कर लीजिएगा विद द ऑथर. रिपीटेड कंसेप्ट है, एग्जाम में दोबारा पूछने के फुल्ली चांसेस हैं. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट. ओके, होप गाइज आज का सेशन आपको मेरा पसंद आया हो एंड विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू नॉट येट. दिस इज़ मस्ट कंडीशन ऑफ माई चैनल. अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आपको प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. एनी हाउ यू विल हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल. रीज़न, I really work hard for you. So this is the you guys can give me a written. Also,
So kind of subscription you guys can give me, this will help me to enhance the confidence in me, so that I will upload such informative videos for you. Till then, bye bye, in the hope you guys are preparing well for your upcoming exam UGC net, and definitely will correct this exam this time. Okay, till then, bye bye.